Very good morning, dear students. Today we are continuing our lesson number 3, that is minerals and the power resources of geography. So students, in the last class we have studied about conventional sources of energy, means the sources of energy which were used from the ancient times, and today we will continue with the topic, that is non-conventional sources of energy. Now in this we will see what are the various modern sources of energy, the sources which are being in use from very recent times. These sources of energy we will see in this topic. So let's start. In this we will study about solar energy, wind energy, nuclear power energy, geothermal energy, tidal energy, and the next is biogas also we will see. So students, sun's heat and light energy is used for making solar energy, and solar cells are there which produce energy, and many solar cells are joined together into solar panel to generate power for heating and lighting purpose. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सन का हीट और लाइट एनर्जी को हम यूज करते हैं, द सोलर एनर्जी, एंड दिस इज एन inexhaustible source of energy, and solar cells are there which used to produce energy, and they are put together or joined together into solar panels and to generate power for heating and lighting purpose. Now the very important condition for solar energy is it is suitable at those places where abundant sunshine used to reach, like tropical countries where abundant sunlight is there, then only this solar energy plant will be successful. And solar energy can be used in solar cookers or solar heaters, and these can be used for community lighting and the traffic signals. Okay, now this was about solar energy. Now we will see about the wind energy. Again, like solar energy, wind energy is also an inexhaustible source of energy. खत्म नहीं होंगे ना ये सारी चीजें, तो हमेशा रहेंगी. So these are inexhaustible source of energy. And in ancient times, windmills were used for grinding grains and lifting water, etc. But अगर modern times की बात करें तो windmills को यूज किया जाता है किस तरीके से, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी. कैसे, जो जब हाई स्पीड विंड्स आती है तो विंडमिल्स रोटेट होते हैं और वो एक जनरेटर से कनेक्टेड रहते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी. और बहुत बड़े बड़े विंड फार्म्स होते हैं जहाँ पर बहुत क्लस्टर में विंडमिल्स होते हैं, और ज़्यादातर कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में या फिर माउंटेन पासेस वाले एरियाज में जहाँ पर रेगुलरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती है. एट दीज प्लेसेस this making of wind energy is successful. Now if we talk about big wind farms, these used to found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA, Spain, and these are noted especially for wind energy production in the context of the world. Now we will see about, do you know points also you have to see beta, like here the site of the world's first solar and wind power burst shelter is in Scotland. ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लांट लगा था सोलर और विंड एनर्जी का वो वहां पर है स्कॉटलैंड में. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर. हाउ फ्रॉम न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड, वी विल सी. So nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. तो न्यूक्लियर पावर जो है वो किस तरह से जनरेट होती है, जो एनर्जी न्यूक्लियर ऑफ एटम्स में स्टोर्ड है और उनमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम एंड थोरियम. अब इन फ्यूल्स को न्यूक्लियर फिशन के थ्रू जाना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और ये क्या एमिट करते हैं कि क्या प्रोवाइड करते हैं, पावर. और सबसे बड़ा जो ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स है न्यूक्लियर पावर का वर्ल्ड गेम में, दैट इज यूएसए एंड यूरोप. अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जैसे डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम कहाँ पर है, राजस्थान में है, झारखंड में है,
ओके, इंडिया की बात करें तो। और थोरियम जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। केरला में जो मोनोजाइट सैंड है वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थोरियम देखने को मिलता है। इफ यू टॉक अबाउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया, तो कलपक्कम है केरला में, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर कोटा के पास राजस्थान में, नरोरा इन यूपी एंड केंगा इन कर्नाटका। These are the main nuclear power stations in our country जहाँ पर न्यूक्लियर ऑफ एटम्स से क्या जनरेट की जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट इज वी विल सी नाउ अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी की अगर बात करें तो जो एनर्जी हमने किससे ऑब्टेन की है, अर्थ से, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर से, अंदर में जो हीट है उससे जो एनर्जी बनाई जा रही है, ऑब्टेन की जा रही है, उस एनर्जी को बोल दिया जाएगा क्या, जियोथर्मल एनर्जी। अब कैसे होता है, क्योंकि देखो हमें पता है कि अर्थ की क्रस्ट में या फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है, डीप अगर अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत हाई है, और टेम्परेचर अगर हाई है इसका मतलब कैसे, क्योंकि वहां पर मोल्टेन मग्मा है, ठीक है, लावा वगैरह है, तो इसकी वजह से वहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अब हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहां पर जो अर्थ क्रस्ट में क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक्स के जरिए जो वो हॉट एयर है, हॉट ब्लोइंग एयर, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। हॉट स्प्रिंग्स वगैरह आपने देखे होंगे कई जगह पर, जैसे लद्दाख वगैरह में, ठीक है, वहां पर क्या है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी के झरने हैं। कई बार माउंटेन एरियाज के आसपास भी ऐसा देखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है, अर्थ क्रस्ट में जहाँ पर भी क्रैक्स है तो वो सारी चीजें जो अर्थ के अंदर हॉट वाटर स्प्रिंग्स वगैरह है वो सारे बाहर आने की कोशिश करते हैं, और उसको, उस हीट एनर्जी को यूज किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए, और इसको कई बार हॉट वाटर स्प्रिंग्स के थ्रू कई बार उसको वाटर को कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। तो अदर देन दिस अगर बात करें तो यूएसए जो है लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है यूएसए में। यूएसए में सबसे ज्यादा क्या है, जियोथर्मल पावर प्लांट्स, ओके, पावर प्लांट्स है वहां पर। और उसके बाद में अगर न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड इज ऑल्सो गुड प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल पावर। आइसलैंड में भी, फिलीपींस में भी बहुत ज्यादा ऐसे देखने को मिलता है, एंड सेंट्रल अमेरिका। These are the places where geothermal power plants are there and they used to produce energy by this. If we talk about India, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में एंड पूगा वैली लद्दाख में हमें क्या देखने को मिलता है, एनर्जी जनरेशन थ्रू जियोथर्मल पावर सिस्टम। आगे अगर बात करें दैट इज अबाउट टाइडल एनर्जी, ठीक है, ये पूरी बात हमने की किसके बारे में, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के बारे में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, द फर्स्ट टाइडल एनर्जी station was built in France. These all important points are very important, and like important points you will write what, all the do you knows given in your lesson. Other than this, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं टाइडल की। तो सबसे फर्स्ट टाइडल स्टेशन था कहाँ पर था, वहाँ पर बनाया गया था, फ्रांस में बनाया गया था। We will talk here about tidal energy. So the energy generated from tides is called tidal energy. Energy generated from tides. Tides तो पता है ना, ठीक है,
तो टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ सी। और इसका फायदा कैसे लिया जा सकता है, कैसे इसका अरेंजमेंट किया जा सकता है, डैम्स वगैरह बिल्ड करके जहाँ पर कम ओपनिंग है सी की उस तरफ। एंड जब हाई टाइड्स आते हैं, the energy of tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity। ये जो प्रोसेस है somewhat related to the making of electricity। ठीक है, क्या होता है कि जो सी में डैम्स बना दिए जाते हैं जहाँ पर नैरो ओपनिंग है सी की, और जब हाई टाइड्स आते हैं तो वहां पर क्या होता है, टर्बाइन्स टर्न होते हैं जो इंस्टॉल किए गए हैं डैम में, और वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पे हाई ह्यूज टाइडल मिल्स फार्म्स कहाँ पर है, तो रशिया में है, फ्रांस में, गल्फ ऑफ कच्छ की अगर बात करें तो वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। तो इंडिया में अगर पूछ लिया जाए तो ये आप बता सकते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, बहुत बड़े टाइडल मिल फार्म्स आर देयर। नेक्स्ट इज the last topic of our lesson, that is biogas। बायोगैस की अगर बात कर ली जाए तो ये आप बचपन से मतलब 3 to 4 ईयर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, ठीक है, वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बायोगैस। कुछ एनिमल्स का डंग, किचन वेस्ट वगैरह, तो इन सबको किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, गैसियस फ्यूल, वो क्या है, बायोगैस। तो बायोगैस समझना पहले इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, एनिमल्स डंग, किचन वेस्ट, जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है गैसियस फ्यूल में, दैट इज नोन एज बायोगैस। और ऑर्गेनिक अभी क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया से in biogas digester to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। जो ये गैसेस हैं जो बायोगैस डाइजेस्टर में स्टोर होकर बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं इस ऑर्गेनिक वेस्ट को, तो किस गैस का मिक्सचर हो जाता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि एक एक्सीलेंट फ्यूल है। ठीक है, एक्सीलेंट फ्यूल है, और किसके लिए यूज किया जा सकता है, कुकिंग, लाइटनिंग, ठीक है, और बहुत ज्यादा लेवल पर ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस हो जाता है, किसके लिए, फॉर द फील्ड्स एंड ऑल। अब जो एनर्जी है वो हर जगह है, बट वी कैन सी हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। तो ये जो बायोगैस वाला प्लांट वाला सिस्टम है ये कॉस्टली है, ये और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है, and each of one can make a difference by not wasting energy। We should not waste energy, we should conserve energy। okay, आप देखते हो ये मैसेज बहुत जगह दिया जाता है, बहुत जगह शॉर्ट नोट्स बना के नोटिस वगैरह लिखा जाता है, प्लीज पुट ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज्ड। ओके, so these are common things and we should always small things but put a बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती है ये। तो हमें एनर्जी सेव्स लगानी चाहिए। अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, यू शुड हैव टू टेक केयर फॉर एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और एनर्जी सेव जो है, जो भी सेव होगी एनर्जी, वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, हमारे फ्यूचर में हमें यूजफुल रहेगी। एंड वी शुड हैव टू एक्ट नाउ ओनली टू मेक एनर्जी ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अगर हम आज सेव नहीं करेंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बाद में सेव कर लेंगे, बाद में तो सेव कब करो, तब करोगे ना, तब रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, you have to save energy। we will discuss some more do you knows because these are important from starting we are discussing now। so about rock we have discussed and there are 2800 types of minerals and 100 ores are there, these we have discussed। and about salt also, that salt in our food and graphite in our pencil is also a minerals। other than this we can also see that if a rock contains copper then the rock looks blue in color। अगर कोई rock में अगर copper है, ठीक है, तो blue नजर आएगी।
After it, Switzerland has no known mineral deposits in it. स्विट्जरलैंड में कोई भी मिनरल डिपॉजिट्स नहीं है, जैसा कि जानकारी में है. आफ्टर इट, ग्रीन डायमंड्स जो है वो सबसे रेयरेस्ट डायमंड है, सबसे कम पाया जाने वाला डायमंड है. और जो ओल्डेस्ट रॉक्स है वर्ल्ड में, कहाँ पर है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में. और 4,300 million years ago, only 300 million years after the earth was formed. वो इतनी ज़्यादा पुरानी है. तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रॉक्स वर्ल्ड में कहाँ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. आफ्टर दिस we will see the next important points. So you should be very clear about what are the conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. आफ्टर दिस, जो वर्ड पेट्रोलियम है वो हमने पढ़ा था, लैटिन वर्ड पेट्रा और ओलियम से बना है. पेट्रोल मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, मीन्स रॉक ऑयल. अगर आगे बात करें तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है जो CNG है, वो बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है, ऑटोमोबाइल फ्यूल है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है. और वो जो है पेट्रोलियम और डीजल की कंपैरिजन में लेस पॉल्यूशन क्रिएट करती है. नॉर्वे जो है वो फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में फॉर डेवलपिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. All important points we have discussed. Now we will see about what are the important questions from this lesson. कैसे आपको इस लेसन को पढ़ना है. सबसे पहले तो आपको बेटा पता होना चाहिए इसमें स्टार्टिंग में कि जो मिनरल्स है, मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. अदर देन दिस, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, माइनिंग के टाइप्स वगैरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और क्या होता है. अदर देन दिस, इंडिया में अगर वर्ल्ड का आपको याद नहीं होता है, और ऑब्वियसली यू हैव टू रीड, बट मोर फोकस यू हैव टू पे ऑन द वेरियस प्लेसेस इन इंडिया. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया ना आपको. तो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स आपको ज़्यादा डिटेल में अच्छे से याद करना है. यूजेस एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ में आपको पता होना चाहिए. प्लस में क्या उनके मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, these also you have to study. After that beta we will discuss the question answers of exercise. First thing is, name any 3 common minerals used by you in everyday. तो इसमें सॉल्ट आप लिख सकते हो, गोल्ड आप लिख सकते हो, कॉपर आप लिख सकते हो. What is an ore? Rocks from which minerals are mined are called ores. Where are the ores of metallic मिनरल्स जनरली लोकेटेड. तो मेटेलिक मिनरल्स के जो ओर्स हैं वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे कहाँ पर? मेटेलिक मिनरल्स के ओर आपको देखने को मिलेंगे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में. ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स के जो ओर्स हैं कहाँ देखने को मिलेंगे? इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में. आफ्टर दैट, नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस. रशिया एंड नॉर्वे. यू कैन राइट. Which sources of energy would you suggest for rural areas? Biogas is best. Coastal areas, hydropower. Tidal power is very best, and hydropower also. Arid regions, wind and solar energy is good. Now next question is, give 5 ways in which you can save electricity at home. Okay. First thing is switching off the power buttons when not in use. Conserve or using the inexhaustible sources of energy like this. You can write. I will provide this. If you talk about tick the corrects की अगर बात कर ले, which one of the following is not a characteristics of minerals? तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि their distribution is uneven. पता है हमें कि हर जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है. डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी होता है मिनरल्स में, वो नेचुरल प्रोसेस से भी क्रिएट होते हैं. जो नहीं है फीचर वो है these are inexhaustible. सारे मिनरल्स इनएग्जॉस्टिबल तो है ही नहीं भाई, एग्जॉस्टिबल है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ मेका? तो झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है. कर्नाटका इज नॉट अ प्रोड्यूसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर चिली है. ओके. Which one of the following practices will not conserve LPG in your kitchen?
तो कंजर्व करना है हमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस को, तो कौन सा वे ऐसा है जिसके थ्रू कंजर्व नहीं होगा? कुकिंग द दाल फॉर सम टाइम बीइंग कुकिंग कंजर्व होगा, कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर कंजर्व होगा, एलपीजी, कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्स बिफोर लाइटिंग द गैस, वेरी गुड, ये भी कंजर्व करने का तरीका है, कुकिंग इन अ ओपन पैन कीप लो फ्लेम, दिस विल नॉट कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। हम ओपन रखेंगे और लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो ज़्यादा जो है एलपीजी वेस्ट होगी हमारे किचन में। आफ्टर दैट सम गिव रीजंस आर देयर एंड differences are there. These exercise I will provide today and do the question answers and revise the lesson. Thank you.